کہ خدا نے مجھے تیسری بار یہ فضل بخشا، موقع دیا کہ آپ سب کے درمیان آ سکوں اور گڈ نیوز کو، انجیل کو، خدا کے کلام کو آپ سب کے ساتھ بانٹ سکوں، شیئر کر سکوں۔ اور میں پاسٹر فواد صاحب کا، ان کی مسز کا، یاسر صاحب کا، ان کی مسز اور ان کے بچوں کا، البرٹ صاحب ہیں، یہ ساری ٹیم ہے، سب لوگ یہاں پر ہیں، آپ سب کا شکریہ۔ آپ اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ خدا کا کلام سب سے زیادہ معتبر ہے، طاقت والا ہے، عمدہ ہے، اور اس جیسا کوئی کلام نہیں ہے۔ بولیے، خدا کے کلام جیسا کوئی کلام نہیں ہے۔ سو خدا کی شکر گزاری ہو مجھے یاد رکھنے کے لیے بھی کہ میں اس دفعہ پھر آ سکوں آپ کے درمیان، اور مجھے انوائٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے اس دفعہ اس سے بھی زیادہ خوشی یہ ہے کہ میں اپنی مسز کے ساتھ یہاں پر ہوں۔ خدا کی خاتمہ کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری ہو۔ آپ سب تشریف رکھ سکتے ہیں اپنی جگہ پر۔ ان کے بڑے کام کے لیے بڑے ایمان کی ضرورت ہے۔ پھر بولیے، بڑے کام کے لیے بڑے ایمان کی ضرورت ہے۔ آج میں خدا کے کلام مقدس میں سے بڑی خاص باتیں آپ کے ساتھ مل کر خدا پاک روح سے سیکھوں گا۔ میں بھی سیکھوں گا اور آپ سب بھی سیکھیں گے۔ آمین آمین۔ لیکن میں صرف آج یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ یہاں سے جا کر آپس میں یہ گفتگو کریں کہ ہم نے آج ایمان پر کلام سنا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں بات ایمان پر کروں گا، لیکن میری بات دھیان سے سنیں۔ ایمان سے ایک سٹیپ اوپر میں آپ کے ساتھ آج ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کا روح ہم سے ایک سٹیپ اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ ایمان لانے والوں کے درمیان کہاں معجزے ہوں گے؟ جہاں لوگ ایمان لائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اور جہاں لوگ ایمان نہیں لائیں گے وہ معجزوں کو نہیں دیکھ پائیں گے، نہ لے پائیں گے، نہ دیکھ پائیں گے۔ لینا بہت دور کی بات ہے، دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیے۔ خروج اس کا 14واں باب، ایکسوڈس چیپٹر نمبر 14۔ چودھویں باب کی 30ویں آیت سے ہم پڑھیں گے، فرام ورس 30۔ ایکسوڈس 14 فرام ورس 30۔ مل گیا سب کو؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے، سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ان کی ڈیڈ باڈیز کہاں پڑی تھی؟ سب بولیں گے، کہاں پڑی تھی؟ کہاں پڑی تھی؟ اور آگے پتہ کیا لکھا ہے؟ اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی،
اور وہ لوگ، دھیان سے سنیے گا، وہ لوگ خداوند سے ڈرے اور خداوند پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ آپ کی بائبل میں ایسے لکھا ہوا ہے؟ میں نے غلط تو نہیں پڑھا؟ کس کس پر ایمان لائے؟ بڑے معجزے کے لیے بڑے ایمان کی ضرورت ہے۔ خدا کو یہ بات اتنی پسند آتی ہے کہ اس نے موسیٰ سے لکھوایا کہ لکھ کہ وہ تجھ پر بھی ایمان لائے۔ آج تک نہ سی یہی سنیا خدا تے مان لیا، خدا تے مان لیا، خدا تے مان۔ ہاں میں خود کہتا ہوں خدا پر ایمان لاؤ، لیکن خدا نے نا زمین پر اپنے ایمبیسیڈرز کو رکھا ہوا ہے، خدا نے زمین پر اپنے لوگوں کو رکھا ہوا ہے جن کے تھرو خدا مینیفیسٹ ہوتا ہے، جن کے تھرو خدا ظاہر ہوتا ہے۔ ارے کلزم کے 2 حصے کرنے والا موسیٰ نہیں تھا، خدا تھا، مگر خدا نے کہا کرنا میں کھلونا آگے تو۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے اور آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مین آف گاڈ ایسا ہے جسے خدا نے میری زندگی میں رکھا ہے، جسے خدا نے آپ کی زندگی میں رکھا ہے۔ اس وقت موسیٰ تھا، آج میرے لیے وہ مین آف گاڈ ہے جو خدا نے میری زندگی میں رکھا ہے۔ اتفاق کرتے ہیں میرے ساتھ؟ اور بائبل یہ کہہ رہی ہے اگر کلزم جیسے بڑے معجزوں کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے تو پہلے نمبر پہ خدا پر ایمان لاؤ، اور اس کے بعد اس شخص پر ایمان لاؤ جس کے وسیلہ سے خدا نے تمہاری زندگی میں بڑا معجزہ کرنا ہے۔ اچھا، موسیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ موسیٰ نے خدا مان لینا ہے۔ آپ کا جو مین آف گاڈ ہے، آپ کا جو پاسٹر ہے، ایسا میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں خدا مان لے۔ خدا خدا ہی ہے، اس جیسا خدا کبھی نہ تھا، نہ ہے اور نہ کبھی۔ بندہ بندہ ہی ہے، وہ گال سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اس بندے کے اندر ایک ایسی اسپرٹ ہے، اس بندے کے اندر ایک ایسی روح ہے جو کلزم جیسی بڑی طاقتوں کو بھی 2 حصے کرنے میں آرام سے کام کر لیتا ہے۔ آمین آمین۔ 15ویں باب دی پہلی آیت دیکھو کے لیے لکھا تھا، موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے، میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند۔ ادھر میرا دیکھو، پندرہویں باب کی 20ویں آیت دیکھیے، 15ویں باب کی 20 آیت، 15-20 لیکن تب ہارون کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا۔ دف ہے وہ ہے جیسا دف، لکھا ہے ہارون کی بہن مریم نبیہ نے، بولو 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 کیا، دف ہاتھ میں لیا اور سب عورتیں دف لیے ناچتی ہوئی۔ کیسے؟ دف بھی پکڑ لیا سب عورتوں نے، پہنا دی میٹنگ لگ گئی، رفاقت خواتین ہے، وومن فیلوشپ، سب بہنوں نے، سب عورتوں نے، مریم ان کی لیڈر تھی، مریم نبیہ ہارون کی بہن، اس نے دف لیا تو باقی خواتین نے بھی، وہ ناچنے لگی تو باقی خواتین بھی۔ ایسے میرے اللہ کو میں دسنا کی چاہ رہا ہوں، لیکن ناچتی ہوئی اس کے پیچھے چلی، اور مریم ان کے گانے کے جواب میں یہ گاتی تھی، خداوند کی حمد و ثنا گاؤ کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند۔ اور آگے لکھا ہے اس نے گھوڑے کو اس کے سوار سمیت سمندر میں، گھوڑے سمیت۔ ادھر میرا دیکھو میں دسنا کی چاہ رہا ہوں، اج تک تسی جتھے جتھے جنازیاں تے فوتگیاں تے مرنے تے گئے ہو نا،
ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਸਨ पे। खुदा के लोगों मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं, I prophesy upon your life, मैं आप सबकी जिंदगी पर प्रोफेसाई करता हूं, स्पेशली उसकी जिंदगी पर जो खुदा पर और उसके खादिम पर ईमान लाता है, उसकी जिंदगी पर ये प्रोफेसाई करता हूं। आपकी जिंदगी में कई ऐसे अनासिर और दुश्मन हैं जिनकी लाइफ पर खुदा आपको नाचने का मौका देगा। आमीन। खुदा ने मूसा को यह मौका दिया कि वो उनकी डेड बॉडीज के सामने गाए, प्रस्तिश करे, नाचे। खुदा ने मरियम को और मरियम की सारी खवातीन को यह फजल बख्शा कि डेड बॉडीज किनारे पर पड़ी हैं और वो नाच रही हैं, वो हम्द कर रही हैं, वो प्रस्तिश कर रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी बात सुने, मुझे तो ऐसा लगता है, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मैं कई दफा जिन्होंने पढ़ना, मेरे साथ ऐसा ही है। मैं जब बाइबल के वाकयात को पढ़ता हूं तो 90% खुदा मुझे वहां ले जाता है और मैं वो वाकया ऐसे लगता है जैसे मेरे सामने हो रहा है। मैं जो वेख्या ना ऐसी कि मरियम ने डेड बॉडीज के ऊपर पांव रखे हुए हैं, जिन्हें मरे सन ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਸਾਨੂੰ बदनाम करते सो, तुम थे ना जो हमें तंग करते थे, तुम थे जो हमें परेशान करते थे, आज तुम मेरे पैरों के नीचे हो। और यीशु मसीह के वसीला से मुझे और आपको खुदा ये फजल बख्शेगा कि दुश्मन इंसान नहीं, दुश्मन जो इब्लीस है वो एक दिन हमारे पैर के नीचे होगा। हालेलुया, बोलिए आमीन। क्या आपका ईमान है? क्या यीशु पर आपका ये ईमान है कि वो आपके लिए कर सकता है, वो आपके लिए कर सकता है, वो आपके लिए कर सकता है। हालेलुया। आज वो दुश्मन जिसके हाथों आप दुख उठाते रहे, एक दिन खुदावंद आपके पैरों में उसको ले आएगा और उसकी कंडीशन क्या होगी? डेथ। उसकी कंडीशन क्या होगी? वो क्या कर रहे थे? मरे पड़े थे। वो अरे उनके तो मर्दों पर ये जुल्म करते थे, खुदा ने मर्दों के साथ साथ खवातीन को जो नाजुक ज़र्फ है, खुदा ने उनको भी ये फजल बख्शा कि अपने पैर न जलते रखो। अगर किसी को समझ आ रही हो तो मर्द एक ताकतवर तख्लीक का नाम है, ऐसे ही है। मर्द खुदा की एक ऐसी तख्लीक है, एक ऐसी मखलूक है जिसे ताकतवर समझा जाता है। और बाइबल में औरत के लिए लिखा है वो नाजुक ज़र्फ है। वो क्या है? ओए जड़ा ताकतवर सी ना, खुदा ने आख्या मर्द साहब तू एक मिनट परा हो, जड़ा नाजुक ज़र्फ है अगे आए ते दुश्मन उत्ते पैर रखे। नाजुक ज़र्फ, नाजुक ज़र्फ। आप जो अपने आप को कमजोर समझते हो, नाजुक समझते हैं, खुदा आपको ये कैपेसिटी देगा, खुदा आपको ये फजल देगा, खुदा आपको ये जोर देगा कि दुश्मन के नीचे, दुश्मन के सर आपके पांव के नीचे होंगे। नाजुक, कमजोर, गरीब, अनपढ़, मैं मेरी नहीं इन्नी जान पहचान नहीं, मेरी इन्नी जान पहचान नहीं, जिदी नहीं यीशु ओदे नाल खलोएगा जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओए असी मारे, ओए असी मारे, ओए ओ बड़े ने, ओए असी मारे, ओ मारिया ले यीशु आया जे, लेकिन उन्होंने मारिया रह नहीं देता, उनको अपना जोर बख्शा, अपनी फतह बख्शी, अपनी कुदरत बख्शी और उन मारों को जोरावर बना दिया। Do you believe? Yes. कैसी औरतें, मर्द डरते होंदे सन इन्हां कोलों सर फिराउन ते ओदे लोकां कोलों, ते नाजुक ज़र्फ ते वैसे ही घरां च हुंदियां सन। आज नाजुक ज़र्फ जो कमज़ोर थे, जो नातवां थे, वो मैदान में आ गए। उनके ऊपर अपने पाँव रखे हुए कुचलते होंगे, मरियम भी कुचलती होगी, औरतें भी कुचलती होंगी, और दफ हाथ में होगा और नाचती हुई कहती होंगी, क्या कहती होंगी? खुदावन की हम्द कर रही है क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद।
हालेलुया। वो कैसे फतहमंद हुआ है? कैसे? बोलिए बोलिए, कैसे? कैसे? फतहमंद कैसे हुआ? और आपको बताना चाहता हूं, व्हाट इज जलाल, व्हाट इज ग्लोरी, हु इज ग्लोरी। हिब्रू चैप्टर 1 में क्या लिखा है? इब्रानियों पहले बाब में, इधर देखिए, जल्दी से बताना चाहता हूं, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। इब्रानियों के पहले बाब में लिखा है, यस्सु के बारे में लिखा है कि यस्सु खुदा बाप के जलाल का परतौ और उसकी जात का नक्श है। जलाल यस्सु है। इब्रानियों के पहले बाब के मुताबिक जलाल क्या है? जलाल क्या है? जलाल क्या है? और मरियम क्या गा रही थी कि खुदा बाप जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। यानी खुदा बाप और खुदा बेटे दोनों मिल गए और उन्होंने फिरौन को घोड़े समेत पानी में कर रखा। आज मेरी बात सुने, अगर जलाल आपके साथ खड़ा हो गया तो आपकी फतह ही फतह है। क्योंकि दुश्मन ने तो जलाल को सलीब पर भी मसलूब कर दिया, मगर जलाल सलीब पर भी कह रहा था फतह मेरी ही है, उसी जो करना कर लो। मैंने एक बार कहा तो 12 तम्मन फरिश्ते आएंगे, मगर कहना नहीं चाहता, इसलिए कि जलाल को दुख उठाकर ही जलाल में दाखिल होने की वजह बनती है। हालेलुया। जरूर है कि जलाल दुख उठाकर जलाल में शरीक हो। किस किस को बात समझ आ रही है? हालेलुया। वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। कैसे फतहमंद हुआ है? कैसे फतहमंद हुआ है? एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये है, इसी समंदर से 2 कौमें निकली हैं। पहले इब्रानी निकले यानी इजराइली, और उसके बाद मिस्री। गल समझ आ रही? और जेडे इब्रानी सन वो इसी रास्ते से निकले और अगले किनारे पर पहुंचे और सलामत है। मिस्री भी इसी रास्ते से उन्होंने सहारा लिया, वो भी किनारे पर पहुंचे हैं, लेकिन सलामती उन पर। को गल समझ आ रही है? आज आपको बताना क्या चाहता हूं, रास्ता एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। रास्ता जो तो उस रास्ते से रास्तबाजी के साथ दाखिल होगा वो किनारे पर पहुंच के जिंदगी पाएगा, क्योंकि उस यीशु ने, उस राह ने फरमाया कि हमेशा की जिंदगी, सिर्फ जिंदगी नहीं, कसरत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। और ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਏ ਜੇ और नाजुक ज़र्फ वहां पर खड़ी हैं। नाजुक ज़र्फ, मैं ख़वातीन से बात कर रहा हूँ स्पेशली, और उन मर्दों से जो अपने आप को गरीब और कुचला हुआ और निचला अपने आप को महसूस करते हैं। यीशु मसीह के होते हुए हम नीचे नहीं हैं। यीशु मसीह ऊपर है तो उसके लोग भी ਉਹ ईमान रखते हो कि नहीं? कि एवं मेरी गल्लां दे पिछे हाँ नाल हाँ मिलाई आउंदे हो पे? ईमान है ना? आमीन। अगर मेरा उस्ताद, मेरा मालिक, मेरा खुदावन ऊपर है तो उसकी प्रस्तिश करने वाला, उसे सिजदा करने वाला भी।
ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। एक ही रास्ता इस्तेमाल किया इन्होंने। इधर मेरा देखो, दौड़ सब दी कोई जे कि जन्नत में जाना है, जन्नत में जाना है, जन्नत में जाना है, स्वर्ग में जाना है, बादशाही में जाना है। दौड़ सब दी, दौड़ सबकी, दौड़ सबकी। पहली कौम उस दौड़ में से निकली और दूसरी भी उसी दौड़ में चल रही है। कौम में सारी की सारी जन्नत में जाना चाहती हैं मगर नहीं जे जा सकदियां। उत्थे पहुंचणगियां जरूर, मगर कोई हमेशा की जिंदगी के लिए पहुंचेगा और कोई अदालत के लिए पहुंचेगा। एक कौम वो थी जो बादशाही के लिए वहां पहुंच गए और पीछे जो कौम आई उनकी अदालत हो रही है। तो किनारे से अदालत शुरू हो गई। कितने अदालत शुरू हो गई? इधर इधर कहां कहां कहां? अरे अगले मजे कहां लेंगे? तुम्हें तो किनारे पर ही दबोच लिया जाएगा। उठे पे संसार है। वो घोड़े और वो रथ जिन पर इनको भरोसा था वो भी उन्होंने टूटे पे साजे। ये मेरे खुदा की कुदरत है। मेरे दुश्मन जिन चीजों पर भरोसा रखते हैं, मेरे दुश्मन जिन चीजों को अपना जोर समझते हैं, मेरा जोर जिसका नाम यीशु है वो उनके जोर को ऐसे तोड़ता है किनारों पर। हालेलुया, हालेलुया। सेम पानी, सेम समंदर, सेम पानी इब्रानियों को मार नहीं सका है। एक पानी इधर खलो गया ते दूजा इधर खलो गया ते विच उन्हां की बना दिता? बोलो बोलो बोलो, की बनाया? हाँ, रास्ता बना दिता। हुण इधर दा पानी उधर नूं की कह रहा है? हेलो, हाथ मिला। वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, खुदा के लोग गुजर रहे हैं, अभी मैं तुझसे मुलाकात नहीं कर सकता। खुदा गुजर रहा है, अभी मुलाकात नहीं हो सकती। खुदा गुजर रहा है, जलाल गुजर रहा है, अभी नो हेलो हाय। हालेलुया। जब आप मुसीबतों के बीच में होंगे ना तो मुसीबत दूसरी मुसीबत के साथ हाथ भी रास्ते खुलते जाएंगे। लेकिन कब? जब जलाल आपके साथ होगा, जब आप जलाल में होंगे और जलाल आपके ऊपर होगा। हालेलुया। पानियों की जरूरत नहीं कि छोटा जा हेलो हाय कर लें। इधर वाला पानी कहता है हाथ ही मिला लै, कोई दो बंदे ही मार दईए। उन्हें कहा ना ना ना, तू दो की गल कर रहे हैं। इतने निका जा याना जरा ना, निका जा उसके ऊपर भी जलाल है। दो बंदों की बात करता है। खुदा के लोगों, ना सिर्फ मैं, मेरी नस्लें भी उस जलाल में कवर्ड हैं। ना सिर्फ आप, बल्कि आपकी नस्लें भी उस जलाल में कवर्ड हैं। बोलिए मेरे लिए ऐसा ही हो। फिर बोलिए मेरे लिए ऐसा ही हो। बोलिए मैं और मेरी नस्लें, सिर्फ एक नस्ल नहीं, मेरी नस्लें उस जलाल में कवर्ड हैं। आमीन। जरूरत नहीं इधर वाला पानी उधर वाले पानी को हेलो हाय भी करे हैं। और जब ये सारे उसमें से गुजर गए हैं, ये विचों डरे भी सन। कई ईमानदार इंजते भी होंगे ना। हाँ, उन्होंने यार उत्ते ना पे हैं, वो पानी सी ना इंजन करता है, लेकिन वो किनारे ते सी, वो इंज नहीं सी हो सकता इन्हां ते, क्योंकि जलाल ने उनको कहा था हेलो, तुम्हारा बनाने वाला मैं हूँ, खबरदार इन पर आने की कोशिश की थी। पानियों को मेरे यीशु ने बनाया है। पानियों को, पानियां दे कन कदी सुने? कन होंदे ने पानियां दे? नहीं, लेकिन यीशु की दसो, कन कदी सुने? पानियां दे कन होंदे ने। पानियों की कोई लैंग्वेज हो? मगर जब मालिक बोलता है तो पानियों के भी कान लग जाते हैं, वो सुनना शुरू कर देते हैं।
हालेलुया। और मालिक जब बोलता है तो उनको लैंग्वेज भी समझ आ जाती है। मालिक ने कहा पानियों खबरदार, मैं गुजर रहा हूं। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। तो आज तक यही सुनिया कि खुदा के लोग उसमें से गुजरे, खुदा उसमें से गुजरा। बात समझ आ रही है? मैं आपको साबित करता हूं कैसे। आपने यही सुना लोग गुजरे, लोग गुजरे, लोग नहीं गुजरे, खुदा खुद उस पानी में से गुजरा, इसलिए समंदर को रास्ता देना पड़ा। और सुनिए, जब खुदा गुजर गया तो फिर समंदर अपनी आदत पर मजबूर दोबारा से एक दूसरे के जफ्फे डालने लगे, और जो बाकी अंदर थे वो उस जफ्फे की जद में आ गए और मर गए। लोग भी, घोड़े भी, रथ भी, हथियार भी, सब कुछ जो उनका था वो पानी की जद में आ गए। लेकिन जब जलाल गुजर रहा था तब पानियों की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। खुदा गुजर रहा था वहां से। कौन? खुदा। कौन? खुदा। आप में से अमाल की किताब किस किसने पढ़ी है? रसूलों के अमाल, द बुक ऑफ एक्ट्स। ओके, पौलुस को जानते हैं आप? पौलुस अपना वाकया अमाल की किताब में गालिबन 4 दफा बताता है कि उसके साथ हुआ क्या दमिश्क की राह पर, जब वो मसीहों को कत्ल करने जा रहा था। ध्यान से सुनिएगा, जब वो मसीहों को कत्ल करने जा रहा था, इससे पहले भी उसने कई मसीहों को कत्ल किया, मारा, दुख दिया, मुसीबत में डाला। और जिस दिन दमिश्क की राह पर यीशु से मिला ना, तो सुनिए यीशु ने क्या कहा। उसने कहा, तू मुझे क्यों सताता है? उन्होंने कहा, मैं, तू है कौन? उसने कहा, मैं यीशु। उन्होंने कहा, मैं तो कभी तेरे सताया नहीं, मैं तेरे जानता ही नहीं। यीशु ने पता क्या कहा? यीशु ने कहा, तू मेरे लोगों को सताता है तो असल में बात समझ आ रही? ਤੁਹਾਡੇ को कोई शहादत नहीं ना बाइबल च ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कि तुसी ये कह सकते हो उन्हें डायरेक्ट यीशु ਨੂੰ सताया। वो तो लोगों को सताता था, मगर खुदावंद यीशु कहता है लोग नहीं, वो मैं हूं। लोग बेसिकली, यीशु कहता है मैं हूं, मेरे लोग लोग नहीं, वो मैं खुद हूं। आपको बात समझ आ रही है? और कहना क्या चाहता हूं, उस दिन भी खुदा के लोग पानी में से नहीं गुजर रहे थे, खुद खुदा गुजर रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपको कहना क्या चाहता हूं, अगर आप मुसीबत में वक्त गुजार रहे हैं, परेशानी में, बीमारी में, तो आप साफ साफ कहें, ऐ खुदावन, मुसीबत में मैं तो वक्त नहीं गुजार रहा, तू गुजार रहा है। किस किस को समझ आ रही? खुदावन, वो मुसीबत मेरी तो नहीं है, तेरी है। जो मुसीबत का वक्त आप गुजार रहे हैं उसको अपना मत बनाए। उसको बोलिए, मेरी खुशी तेरी खुशी है तो मेरा गम भी ये मुसीबत से मैं तो निकलूं ही है। खुदा वो है जो ज्यादा वक्त मुसीबत में नहीं रहता। अगर वो खुद मुसीबत से निकल सकता है तो वो आपको भी निकालने की कुदरत है। मैं एक्चुअली यीशु की बात कर रहा हूं, जब वो मसलूब था, जब वो दुख उठा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदा पर और खुदा के बंदा मूसा पर ईमान लाए। हालेलुया। बड़े मौजज़े के लिए आपको बड़े ईमान की जरूरत है। उन्हें जो अपनी अखां फाड़ फाड़ वेख्या ना, उन्हें क्या है, मूसा वाल कभी समंदर नूं वेखदे हन, कभी मूसा नूं वेखदे हन, कभी समंदर नूं वेखदे हन, कभी मूसा नूं वेखदे सन। मैनू लगता है, इंज लिखिया नहीं बात, मैनू लगता है कि उनमें से कईयों ने तो मूसा को ही खुदा समझ लिया होगा।
जिस शिद्दत से यहाँ उस पर ईमान लाने की बात लिखी जा रही है। कईयों ने तो मूसा को सजदा भी किया होगा, मूसा ने मना किया होगा, उन्होंने कहा ओ ना भाई मैं बंदा ही हाँ, इंसान हाँ, मैनू कितने कर दो पे सजदा। बाज़ औक़ात लोग मुझे भी जब मिलते हैं तो ऐसे झुकते हैं, घुटनों को हाथ लगाते हैं, मैं सबको मना करता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे के घुटनों च दर्द है, तुम घुटनों को हाथ लाते हो। परसों रात को एक पास्टर साहब मेरे घर पे आए, वो अपने 3 सवाल उन्होंने मुझसे मेरे आगे रखे, ये 3 सवाल इनके जवाब चाहिए। मैंने जवाब दिए, जब मैंने जवाब दिए वो जाते हुए मेरे घुटनों को हाथ लगा रहे, कह रहे उस्ताद जी क्या बात है। मैं कहा भाई ये घुटने च कख नहीं लभना, तेनों दर्द ही लभेगी थे और कख नहीं, मगर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके घुटनों में जोर है और उसका नाम यीशु मसीह है। जिसके पैरों में ताकत है, जिसके घुटनों में ताकत है, उसकी हड्डी ना टूटी, उसकी हड्डियों में भी ताकत है, उसकी बॉडी में ताकत है, उसके लहू में ताकत है, उसकी आंखों में ताकत है। हालेलुया। यूहन्ना आरफ ने तो जब उसको देखा ना ते बदन दा एक एक हिस्से का नाम ने लिया, कहता उसके बाल सफेद ऊन की माने थे। मैंने किसी ने कहा कि मैंने कहा वो बदन के जिस जिस हिस्से का नाम लिया है वहां वहां जोर, ताकत और फतह है। कहता उसकी आंखें आग के कहता उसकी जुबान निकली तो कहता मैं जुबान नहीं देखी, मैंने तो 2 धारी तेज तलवार देखी। कहता मैं आधा सीना देखा, सीना नजर नहीं आया, कहता है सीने पर सोने का सीना बंद देखा। हालेलुया। कहता और ओदे बाद मेरी नजर पई पैरां ते, कहता है पांव खालिस पीतल के से थे, खालिस सॉलिड। यीशु ने पैर कैसा पीतल, अरे यूहन्ना को बखाया गया कि मैं वो खुदा हूं जो सॉलिड हूं और मैं चट्टान पर खड़ा हूं, ते मैनू कोई माई दा लाल सुट नहीं सकता, ते जे मैनू नहीं सुट सकता ते मैनू सजदा करने वाला भी कभी टेक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। ईमान रखते हैं। वो देखते होंगे मूसा को बार बार, की है ਉਹਦਾ ਸੋਟਾ ਵੀ ਫੜ ਫੜ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਇਹਦੇ ਸੋਟੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਸਮੁੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਸੋਟਾ ਸਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੜਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਬਰੁਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੋਟੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਸੋਟਾ ਇੱਧਰ ਦਵਾ, ਕੀ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ ਪਏ। चूमना है तो उसको चूमो जिसकी ताकत इस सोटे के अंदर है। हालेलुया। ऐ साडे लोगों ने बड़ी प्रॉब्लम जे, खुदा जिस चीज में से मैनिफेस्ट होता है हम उसी को अपना खुदा बना लेते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे मुआशरे की। फॉर एग्जाम्पल मेरा रुमाल है, हाँ ये अनॉइंट हो सकता है, कपड़ा रुमाल अनॉइंट हो सकता है। आप इसे अनॉइंटिंग के जुमरे में इसको ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन ये रुमाल कभी खुदा नहीं हो सकता। इसको सजदा ना करो, इन चुम्मो ना, की प्यार है। मैंने कई लोगों को अपने रुमाल दिए हैं, जो रुमाल मैं मीटिंग में यूज़ करता हूँ वो अनॉइंट होता है, वो मैंने कई लोगों को बांटे हैं, कई बहनों को मैंने दिए, बेटियों को दिए। मैंने कहा जब दुआ करेगी इस रुमाल को धोना नहीं है, जब दुआ करेगी अपने सर पे दुपट्टे के तौर पे इसको रख लेना और फिर दुआ करना। और कई गवाहियाँ मेरे सामने आई हैं, कई गवाहियाँ। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ पुत्र गल सुन, ए रुमाल नूं खुदा ना मन्नी,
ایک پادری صاحب نے اعتراض کیا کہ تسی وہ رومال دیتا ہے، یہ کی طریقہ ہے؟ میں کہا وہ طریقہ ہے جڑا الیشا نے ایلیا نے الیشا دے نال کیتا سی، انہیں بھی کپڑا ہی دیتا سی، اور کی دیتا سی؟ کیوں سر؟ تے وہ کپڑے دے مگر ہی وہ بھجدا رہا، کیا جڑی یہ شال ہے نا یہی چاہیے؟ وہ گل سمجھ آ رہی جے؟ تے میں کہا وہ بی بی نو کتنے سٹو گے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا؟ انہیں کی چھو لیا سی؟ یسو کی باڈی نہیں چھوئی تھی سر، یسو کی باڈی تک تو رسائی ہی نہیں تھی اس کی، اس نے یسو کے کپڑوں کو ہی چھوا تھا، اور کپڑوں میں سے طاقت نکلی سر۔ وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ کپڑے میں سے زور نکلا، کپڑے میں سے میریکل نکلا۔ کیوں؟ کیونکہ میریکل اس باڈی کے اندر تھے اور کپڑا اس باڈی کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ ہاللیلویا، سمپل۔ لیکن میرے لیے کبھی نہ یہ یسوع ہو سکتا ہے، نہ یہ رومال کبھی خدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں موسیٰ دے سوٹے نو نہ کدی سجدہ کر سکنا تے نہ چوم سکنا۔ خدا آپ کے ہاتھ کی چیزوں کو یوز کر سکتا ہے سر۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ کو پتا ہے اسرائیل میں اس وقت سوٹا ہوتا کن کے پاس تھا؟ جو لیڈرز ہوتے، ان کی جو سٹک ہوتی تھی، ان کا جو ڈنڈا ہوتا تھا، وہ اس بات کی نشانی تھی کہ میرے پاس اختیار ہے۔ میرے پاس کیا ہے؟ اتھارٹی ہے، اختیار ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسپیکٹرز جو ہوتے ہیں، بڑی پوسٹ چھوٹی چھوٹی انہوں کو ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ اور جب وہ اپنا اختیار کسی کو تھماتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ سوٹا۔ وہ ذرا ماڈرن دور ہو گیا، سوٹی ہو گئی ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ سٹک۔ موسیٰ کے پاس کیا تھی؟ سٹک۔ خدا آپ کے ہاتھوں کی چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، آپ کے یوز کی چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ خدا نے ایک دن موسیٰ سے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا سٹک، سوٹا، لاٹھی۔ انہوں نے کہا زمین تے سوٹ۔ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کتوں لے آن دی لوڑ نہیں، جو تیرے پاس ہے میں اسی کو استعمال کروں گا۔ کوئی چیز باہر سے لانے کی ضرورت نہیں، جو آپ کے پاس ہے خدا اسی کو یوٹیلائز کرتا ہے۔ جو برکتیں آپ کے پاس ہیں خدا اسی کو یوٹیلائز کرتا ہے۔ جو کمزوریاں آپ کے اندر ہیں خدا ان کمزوریوں کو ہی یوٹیلائز کر لیتا ہے۔ جو سکلز اور جو ہنر آپ کے پاس ہے خدا اسی کو استعمال کر لیتا ہے۔ جو ایجوکیشن آپ کے پاس ہے خدا اسی کو استعمال کر لیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا نے کہا کخ نہیں کرنا، تیرے ہاتھ میں کیا؟ اس نے کہا میرے ہاتھ میں یہ ڈنڈا ہے۔ اس نے کہا زمین پر پھینک، وہ سانپ بن گیا۔ جادوگر نے کہا ہے کیڑی گل ہے کیڑی گل ہے؟ انہوں نے بھی پھینکا۔ خدا خدائی جے، فرعون کے جادوگر کچھ بھی کر لیں، میرے اور آپ کے خدا کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بھی اپنے سوٹے سٹھے، وہی سپ بن گئے۔ فرعون بہ کے پھینکدا پیا، موسیٰ ہویا تو بڑا کرشمہ کر کے وہایا۔ انہوں نے کہا کرشمہ تے ہلے ہویا ہی نہیں، کرشمہ تو ابھی ایویں کی ہوندا کی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے موسیٰ کے سانپ نے ان کے سانپوں کو کہندا ان کڈ دے چوں کرشمہ، اے کرشمہ۔ ہون تے اپنے جادوگر کا ہون کچھ کرن نہیں کر سکتے۔ ابلیس نہ آپ کو کوئی ایک کام کر کے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کرے گا، مگر خدا سے کبھی بھی بازی لے کر نہیں جا سکتا۔ آپ کا خدا پھر بھی اس کے اوپر ہی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرا اور آپ کا خدا پھر بھی اوپر ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں اپنی لائف میں وہ کچھ کروں جس کا ذکر بائبل میں ہے، اور جس کا ذکر بائبل میں نہیں ہے میں وہ کام نہیں کرتا۔ بات سمجھ آ رہی؟
समझाने के तौर पे आपको बताता हूँ, सिर्फ समझाने के तौर पे। मैं एक दफ़ा ऐसे स्टेज पर था, किसी स्टेज पर, और वो काफ़ी ऊंचा था स्टेज काफ़ी ऊंचा था, और जो स्टेज के नीचे ऐसे लोग खड़े थे मेरी तरफ, उनके तकरीबन मैं यहाँ पे आ रहा था, यानी मेरे पाँव यहाँ थे, इतना स्टेज ऊंचा था। मैं दुआ कर रहा था सब पे, लोग आगे खड़े थे, और सडन काफी लोग थे, लेकिन उनमें से एक के लिए खुदा ने पता मुझे क्या कहा। हो सकता है आप में से भी कुछ सुन के शॉक हो जाए, ये क्या बात है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। खुदा ने कहा इस पे हाथ ना रख, इसके पेट पर अपना पाँव रख, इसके पेट पर अपना पाँव रख, और मैं इसकी जिंदगी को बदल दूंगा। मैं 2 तो 3 मिनट सोचता रहा, पैर रखा ना रखा, रखा ना रखा, एक ही सोचेगा या जमाना की सोचेगा, पीछे जेड़े बैठे लोग की सोचेंगे। खुदा ने कहा जो मैं कहता हूं वो फिर नहीं, मैं सोचा, मैं अपना पैर उसके ढिड ते रख दिता, तो मैं दुआ की थी, नाल मैं उसके ढिड में दबा रहा। भाई समझ लो पता नहीं की मेरी नाफ कट देंगे हैं। 2-3 दफा मैंने किया, वो की कर रहे खैर, कहना क्या चाहता हूँ, उस शख्स ने बाद में मुझे बहुत कुछ बताया। उसने कहा आपके पैरों में से जैसे बिजलियां निकल रही थी, आपके पैरों में से जैसे करंट मुझे लग रहा था। इत्तफाक से, इसे इत्तफाक कह लें क्या कह लें मुझे नहीं पता, वो जो फोटोग्राफर था वहां पे, उसने वो तस्वीरें बना ली 3-4। वो जिहदे ढिड ते मैं पैर रखा सी, उन्हें ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਈ कि तस्वीर ते देख मैनू। तस्वीर वो साहब ने अपने फेसबुक ते ला ली है, जो फेसबुक ते तस्वीर ला ली ना, उन्होंने किसी बंदे ने कहा ये कौन सा तरीका है, पादी साहब ने पाँव क्यों रखा हुआ है, हाथ रखना चाहिए, पाँव रखा हुआ है। उन्हें उन्होंने कहा भी कि भाई उन्हें हाथ बड़े लोगों ने रखा है, मेरे तो उन्हें पैर रखा है, मैनू नहीं पता, लेकिन मुझे ये वो बंदे ने ना मेरा नंबर कितों लभदा रहा, उन्होंने कितों नहीं लभ्या मेरा नंबर, उन्हें मैनू मैसेंजर ते मैसेज किया, उन्हें आख्या जी ये क्या तरीका है, आपने पाँव रख के क्यों दुआ की। मैं कहा तू आ, मैं कोनी रख के तेरे ते दुआ करना, अंगूठा रख के तेरे ते दुआ। कहते नहीं मैनू जवाब दो। मैं क्या कभी बाइबल में अगर ये दर्ज ना होता, और अगर मैं आज के दौर में एक ये काम करता जो अलीशा ने किया था, मुर्दा बच्चा था उसके ऊपर लेटा, ਉਹਦੇ नक ते अपना नक, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ते अपनी ਅੱਖਾਂ, उसके होंठों पे अपने होंठ, उसके पैरों पर अपने पैर, उसके हाथों पर अपने हाथ, उसके बाजुओं पर अपने बाजू, उसके पेट पर अपना पेट, एग्जैक्टली उस बॉडी के ऊपर वैसी लेट गया जैसे वो बॉडी थी। अब इस वाकये को सहारा देने के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें करते, वो तो ऐसे था, वो तो ऐसे था, वो तो ऐसे था, तो मैं क्या मेरा पैर रखना भी ऐसे था और ऐसे था। ड्रामा है सर ये लोगों का, छोटी छोटी बातों को एवं इशू बनाएंगे। वो लोग नजात पा रहे हैं उस पासे नहीं तुसी आउंदे, ਉਹਦੇ ਲਈ नहीं तुसी मैनू मैसेंजर ते राबता करते, तालियां बजाते मेरे लिए, या मैनू शाबाश देंदे कि यार खुदा तुहानू इस्तेमाल कर रहे। जे पैर रख दिता तो हल मच गई है जी। ये इंज का ही मुल्क जो तुहाडा ते मेरा, जिथों आए जे असीं इत्थे बैठे हैं, इंज दे जे सारे।
ہمارے ملک میں یہ بات سننا پسند نہیں کرتے کہ خادم تے ایمان لے آؤ. نہیں ایمان تے خدا تے ایمان تے خدا تے ایمان تو تہاڈی کتاب کہہ رہی ہے, تمہاری کتاب کہہ رہی ہے کہ لوگ خدا پر اور خدا کے, لیکن میں نے شروع میں بھی کہا اور اب پھر سے کہتا ہوں, موسیٰ کبھی بھی پھر بھی خدا نہیں تھا, اور آپ کا پاسٹر بھی جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اس کے وسیلہ سے کر سکتا ہے, وہ بھی کبھی بھی خدا نہیں ہے. خدا آپ کو یہ فضل بخشے گا, خدا آپ کو یہ فضل بخشے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایک دفعہ کسی کلیسیا سے ایک صاحب آ گئے, اس نے کہا جی میں نہیں مانتا کہ خادم تے بھی مان لے آؤ. میں کہا نہ من, تو نہیں مننے گا تو میں کہا بائبل چ آیت مٹا دینی ہے, تو ہے کون, تیری حیثیت کی, تو نہیں مننا تے. میں کہا تو سب چھڈ مینوں یہ دس تیرے پاسٹر دا نام کی. انہیں جدو اپنے پادری دا نام دسیا نا, میں کہا بیٹا تو بالکل ٹھیک سوچنا ہے, تینوں واقعی خادم تے ایمان لے آنے کی ضرورت نہیں. تیرا پادری کلام سنا کے تھلے ہوتا ہے تے 2 سگٹاں پیندا ہے, تو کھیت کٹا اور تے ایمان لے آنا ہے. وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ ارے ایمان اس پہ لایا جاتا ہے جس کے وسیلہ سے خدا کچھ کر کے بھی دکھائے. ایویں نہیں یسوع کے پیچھے جس کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے, وہ لوگ تو کہتے ہیں جھوٹا ہے یہ, لوگ کہتے تھے یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے, کسی نے تو یہ کہا یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے, لیکن پھر بھی ہزاروں کی بھیڑ اس کے پیچھے کیوں جاتی تھی؟ کچھ ہوتا تھا اس کے وسیلہ سے. ہاللیلویا. کچھ ہوتا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے جاتے تھے اور بڑے بڑے کام ظہور میں آتے تھے. آج خدا کی حضوری میں سچ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو کسی خادم کے پیچھے لگنے کی تعلیم نہیں دے رہا, کسی انسان کو فالو کرنے کی تعلیم نہیں دے رہا, مگر یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مین آف گاڈ کا ہونا بھی ضروری ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یسوع کی زندگی پر کس کا ہاتھ تھا؟ خدا باپ کے بعد یسوع خود خدا تھا, لیکن جب وہ انسان بن کر زمین پر آیا اور انسانوں کی طرح زمین پر رہا, تو ایک شخص کا ہاتھ اس نے اپنے سر پہ رکھوایا تھا. تسی زمین تے کتے بھی پہنچ جاؤ, کتنی بلندیاں تے پہنچ جاؤ, پھر بھی آپ کو ہمیشہ زمین پر بھی ایک ہاتھ کی ضرورت ہے. یسوع نے کیوں کیا کہ جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے یوحنا سب سے کیوں کیا؟ اوے ابراہم تو بڑی خدمت نہیں سی یوحنا دی, موسیٰ سے بڑے معجزات نہیں تھے یوحنا کے, ایلیا سے بڑے بڑے کام یوحنا نہیں کر کے گیا. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہے ہیں؟ الیشا سے بڑے کام یوحنا نہیں کر سکا, مگر یسوع کہتا ہے یوحنا سب نبیوں سے بڑا نبی ہے. کیوں؟ کیونکہ یسوع نے اپنا آپ اسے سبمٹ کیا تھا, سبمیشن کی تھی یوحنا کے آگے یسوع نے, اور یوحنا ڈر گیا. انہوں نے کہا تو سبمٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو مجھے, میں تو خود سبمٹ ہونا چاہتا ہوں. گل سمجھ آ رہی ہے؟ میں تو خود تیرے حضور جھکنا چاہتا ہوں, تو مجھ سے بپتسمہ لے رہا ہے, تو سبمٹ کر رہا ہے. یسوع نے کہا یہ ہونے ہی دے. یسوع نے کہا میرے تو ود کے زمین تک کوئی بندہ ہی نہیں ہے, پھر میں پھر کدھر جاواں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اس وقت لاسٹ پروفٹ یہی تھا, اس لیے یسوع نے کہا یہ سب سے بڑا ہے, یہ سب سے. اور اس نے چونکہ یسوع کو بپتسمہ دیا, اس لحاظ سے یسوع نے کہا نبیاں چہرے ورگا کوئی نبی کون نہیں. یسوع نے ابراہم کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیا, موسیٰ کو بھی, ایلیا کو, الیشا کو,
यशुआ को, ये सब जो बड़े बड़े कारनामे करने वाले थे, इन सबको एक लिस्ट में खड़ा कर दिया, यूहन्ना ने एक अलग ही मकाम दे दिया। क्यों? बिकॉज यीशु ने सबमिट किया था। गो, यीशु फिर भी यूहन्ना से मोतबर था। मेरी बात ध्यान से सुने। गो, यूहन्ना को पैदा करने वाला खुद यीशु था। यूहन्ना को मां के पेट में रूहुल कुद्स का बपतिस्मा देने वाला भी खुद चूंकि यीशु ही था, लेकिन तो भी इंसानी सूरत में आने के वजह से उसे किसी इंसान को अपने आगे सबमिट करना पड़ा। प्लीज हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ऐਵੇਂ ना कहो मेरा उस्ताद रूहुल कुद्स है, बस वो ही मुझे बाइबल सिखाएगा। मेरा कोई उस्ताद नहीं, मेरा उस्ताद रूहुल कुद्स है। एडा तो नबी कि डायरेक्ट ही रूहुल कुद्स तेरे वाल होया होया और किसे हाथ दे थल्ले जिंदगी गुजारो। तुहाडी मेहरबानी। बाइबल खुली है कि बंद हो गई? एक हवाला पढ़ ली? कितनी देर है मेरे को? 10 मिनट्स और है। 10 मिनट्स में मैं ख़त्म कर दूंगा। इस्तिस्ना निकालें मेरे साथ। लास्ट चैप्टर 34, इस्तिस्ना 34, इस्तिस्ना 34। इसको क्या इंग्लिश में डिटॉर्मनी कहते हैं? डिटॉर्मनी 34, 9वीं आयत। उर्दू की भी अच्छी है। अच्छा, यासिर साहब को बड़ा यकीन है, कहते हैं मेरी अच्छी है। वही खड़े खड़े पढ़े यासिर साहब आप। और नून का बेटा यशु दनाई की रूह से मामूर था। नून का बेटा यशु यानी यशवा दनाई की रूह से, इधर मेरा देखो, यशवा किस रूह से मामूर था? इधर मेरा देखो, किस रूह से मामूर था? दानाई की रूह से क्या था? क्यों? आगे पढ़े। क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। आमीन, आमीन। यशवा दानाई की रूह से क्यों मामूर था? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲੋੜ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ रूह जरूर है। सर दानाई की रूह उस पर थी, यानी खुदा। रूह कौन है? रूह कौन है? एक्सक्यूज मी, रूह कौन है? क्या लिखा है? खुदा रूह है, ये लिखा बाइबल में। यानी यशवा पर खुदा मौजूद था। कब? जब उस पर कोई इंसानी हाथ भी था। मैंने कई पादरियों को कहा है, जब मैं उन पे हाथ रख के दुआ करता हूं, मैं कहता तुम्हारा तो सिर ही खाली है। एक पास्टर को मैंने कहा आपका सर खाली है। कहते मैं समझा नहीं। मैंने कहा आपके पास्टर का क्या नाम है? मैं खुद पास्टर हाँ। मैं खुद, मैनू भी पता है, मगर तेरा कौन पादरी है? कहते मेरा तो कोई पादरी नहीं। मैं कहा तो मैं रो रहा, तेरा सिर, तेरे सर पे किसी का हाथ। सर मुझे जवाब दीजिए इस हवाले को पढ़ के, क्या खुदा यशवा को ये नहीं कह सकता मेरा हाथ काफ़ी है यार, तू नाम ही मूसा दे हाथ रखवा, कोई मसला नहीं, जा तो अपना काम कर, मैं तेरे नाल रहा। क्या खुदा ये कह नहीं सकता था? मगर खुदा ने यशवा से कहा एक्सक्यूज मी यशवा, अगर तू चाहता है कि मेरा हाथ तुझ पर हो तो जो मेरा बंदा जमीन पर है उसका हाथ भी तेरे ऊपर होना जरूरी है। एडे असी महान नहीं आ के हर वक्त खुदा साडे नाल रूबरू गल्लां करे, मगर खुदा अपने खादिम के थ्रू मुझसे और आपसे क्या करता है? ऐ मानते हो कि नहीं? खुदा अपने खादमा के वसीले बोलता है, मानते हो कि नहीं? पिछली दफ़ा कितने लोग कन्वेंशन में थे? जब मैं आया था 6ठे महीने,
आपने अपनी आंखों से देखा खुदा कैसे लोगों से बोल रहा था। रियाज साहब यहाँ मौजूद हैं, आपके बच्चों के लिए खुदा ने कलाम किया। तो भी ये कलाम करने वाला खुदा नहीं है, ये फिर भी बंदा ही है, कलाम खुदा ही करता है। हालेलुया। एक बंदा आंदा हुण फिर तुहानूं प्यो कहिए, मैं कदों तेनों लिख के दिता मैनूं प्यो कह। मैं कहा साढ़े तो चंगे फिर कैथलिक ही ने कम से कम अपने प्रीस्ट नूं फादर आंदे ने। की आंदे ने? वो भावें उन्होंने तो छोटी उम्र का होवे, फिर भी उसको क्या पुकारते हैं? मैं साढ़े तो वड्डा मुकाशफा तो उन्होंने मिल गया। सर हम अपने पास्टर को पापा कहने के लिए, फादर कहने के लिए हिचकिचाते हैं, झिझकते हैं, उसको बाप नहीं मानते। ये बाइबल का मुकाशफा कैथलिक वाले को पहला पहुंच गया, फिर वो इस पर चल रहे हैं सारी दुनिया में। आज मैं आपको प्लीज ये नहीं कहने आया कि अपने पास्टर को पापा कहना शुरू कर दें, प्लीज ऐसा नहीं है, खुदा जानता है। लेकिन मैं कहना ही चाहता हूं अपने पास्टर की एक बाप की तरह इज्जत करना शुरू कीजिए। लोग खुदा पर और खुदा के बंदा ईमान लाए। आमीन। अगर तुसी कलीसिया ही बने रहे ना, तो कलीसिया होंदी जे भेडां की होंदियां ने, ते भेडां नूं की मिलदा है? चारा ते राहत दे चश्मे, एंड दैट्स ऑल। भेड़ को क्या क्या मिलता है? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या? और क्या मुझे सुन सकते हैं? आज फैसला आपके हाथ में है। एक्सक्यूज मी, सुनिए। भेड़ों को क्या मिलता है? और पानी। फिर पूछता हूं, भेड़ों को क्या मिलता है? चारा और पानी। मगर बेटों को क्या मिलता है? मर्जी तुहाडी है। तुसी भेडां ही बने रहना है तो भेडां ही बने रहो, भुखे नहीं मरोगे। कम से कम चारा मिलता रहेगा। तो जे तुसी चारे दे चक्रां चो ना, तो फिर चारियां दे रहो, फिर चक्रां च रहो। चार 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 जी जमीन ते आए हैं, कमान आए हैं, बच्चे पालन आए हैं, तो करो फिर। लेकिन अगर मिरास के हकदार बनना चाहते हैं तो मिरास बेटों को मिलती है। हैं? भेड़ों को मिरास बेटों को मिलती है। तो जो कहते हैं इतों लंघने यहाँ पे आवाज सुनी गीतां दी, ही आखे चलो चले जाने, उदों तो बस फिर तुहाडे कोई आईदा। इनू आंदे ने पड़ोसी। की मिरास पड़ोसियों को भी मिरास बेटों को मिलती है। 2 मिनट और दे दूं? सुनिए क्या मैं चाहता हूँ। मेरे चर्च में एक बहन ने मुझे कहा आप हमेशा बेटों 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 बेटों, बेटियों की भी कोई बात किया कर। मैं कहा तू बेटी है ही नहीं, तू भी बेटा है। कहती हैं वो कैसे? मैंने कहा बाइबल में लिखा ही नहीं है बेटियां आसमान पे होंगी, बाइबल में लिखा है बेटे होंगे। तो कहती फिर साडा की बनेगा? मैं कहा थोड़ा ही बनेगा। तू बेटी नहीं, तू बेटा। और मैं ये लॉजिकली नहीं कह रहा, मैं बिब्लिकली कह रहा हूं। ये कहती वो कैसे? मैंने कहा मेरे लिए कहा जाता है मैन। क्या कहा जाता है? और तेरे लिए क्या कहा जाता है? वो मैन। वो तू भी क्या है?
मुझे कहा जाता है मेल, और तुझे क्या कहा जाता है? फीमेल। तेरे अंदर से वो और फी निकाल दिया जाए, तू भी वही है जो मैं हूं, तो आसमान पर यही गिने जाएंगे। लिखा आसमान पर बेटों की मानित होंगे सब। हालेलुया। आपके अंदर जो स्पिरिट है ना, वो फीमेल नहीं है। बहनों, बेटियों, आपके अंदर जो स्पिरिट है, स्पिरिट का कोई जेंडर नहीं है। स्पिरिट ऑलवेज मैन। बॉडी का जेंडर होता है, ते बॉडी ने ते आसमान की भाषा च नहीं जाना, तो फिर कौन जाएंगे? बेटे। सब वहां पे क्या होंगे? सब क्या होंगे? मैं गलत तो नहीं कह रहा? किसी ने यीशु ने पूछा ना कि आसमान पर ये किसकी बीवी होगी, उन्होंने कहा आसमान पर शादी ब्याह। पता है ये क्यों कहा? यीशु के कहने का मकसद था आसमान पर कोई जेंडर सारा मट्टी में रह जाएगा, जिथों मैं लैके जेंडर बनाया है, ये जेंडर इत्थे छट जाना है। मैं आसमान पर सब बेटों की मानित हूं। हालेलुया। इसलिए बेटियों, कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझो कि मैं नाजुक ज़र्फ हूं। तुसी सोहरियां जी नाजुक ज़र्फ हो, और कितने नहीं हैं बंदे दे सामने दे भाई। लियाकत साहब, बड़ा दुख बोलिया तुसी। अच्छा साहब है, देखो हुण पर्दा पा रहे जे बाजी, क्या कहें। चलो, खुदा तो नहीं हिम्मत दे सर, खुदा बरकत दे। हम सब आसमान पर शहजादे होंगे, क्योंकि हम बादशाह के बच्चे हैं। हालेलुया। बादशाह का तख्त हमारे सामने होगा और वो तख्त नशीन होगा और हम उसके बेटे वहां पर बादशाही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोज़ात की किताब किस किस ने पढ़ी है कभी? जजेस, कभी आपकी नज़रों के सामने गुजरी हो बाइबल में से? जजेस की किताब पढ़ो, उत्थे लिखा है जदों जदों इसराइली रोंदे सन, हाय खुदा मुसीबत आ गई, मुसीबत आ गई, सानू तेरी जरूरत, सानू तेरी, वहां पे लिखा है तब तब खुदा उनको कोई ना कोई मैन ऑफ गॉड देता था। वो खुदा मांगते सन और खुदा उनको क्या देता था? जो उनको उस मुसीबत से क्या करे। आपकी लाइफ में किसी नबी का, किसी अपोस्टल का, किसी मैन ऑफ गॉड का होना जरूरी है। आमीन। अपने कदमों पर खड़े होंगे, हम सब दुआ करेंगे। अपने हाथों को उठाइए, सर आप हारमोनियम पे आए, सिर बचाइएगा। हालेलुया। अच्छा, आपका नाम सर? वकास साहब अभी गा रहे थे तन में कुव्वत नहीं, मन भी, लेकिन अब हम ये नहीं गाएंगे मन मैला है। यीशु का लहू है तो मन मैला। अब हम गाएंगे तन में कुव्वत नहीं, मन में तेरा लहू। मन में हम कमजोर जरूर हो सकते हैं, मगर हमें गुनाहों से आज़ादी जरूर मिल गई है। उसने अपने लहू से मुझे और आपको क्या कर दिया है? पाक साफ कर दिया है। अब हम ये गाएंगे तन में कुव्वत नहीं, मन में तेरा लहू। ऐ खुदा खुदा आ मुझे थाम दो। दोबारा से गाएंगे मिलके। तन में कुव्वत नहीं, मन में तेरा लहू। ऐ खुदा खुदा मुझे थाम ले। तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, ऐ शाहे